General G.D. Bakshi is opening the debate with Sanjay Vasudeva of BuzzOne. Sanjay Vasudeva believes the ban is bad. General Bakshi believes, of course, that it is good. It is a basic level escalation that we need to do. Can you start the debate, General Bakshi? There are people who are now saying this ban was not required in the context of their recent attempt to try and change situation on the ground and the fact that we've hit them back. I think it's very necessary. Our country is more important than PUBG, isn't it, General Bakshi? It is absolutely far more important than a whole lot of PUBGs put together. You know, Arnab, what I wish to point out is that in such a time of crisis, the government has to take what is called a whole of the government approach. Military, economic, diplomatic, every kind of measures are to be brought to put pressure on a recalcitrant China, on a needlessly over-aggressive China, which has been creating a nuisance of itself after spreading COVID to the whole world. You know, it is acting aggressive with each and every one of its neighbors. Yeah. It is time to pay it back in its own coin. Yeah. We need to be very aware of the fact that the Chinese have set up a strategic support force, one-third of whom is designed to carry out cyber warfare. Yeah. And these are the Trojan horses. Yeah. These are the penetration agents that they will use to enter our cyber networks and wreak havoc in the time of a conflict. No government can shut its eyes. No government worth its name can shut its eyes to such a threat, a cyber warfare threat from whole brigades of hackers and crackers. We want to give them entry points. Why do we want to give them entry points, Sanjay? There is a whole... Sanjay, why do you... Hi everyone, this is Arnab Goswami and I want to talk about our digital platform Republic World, the fastest news destination which has got you covered on all fronts, be it politics, entertainment or sport. And the reason I want you to follow Republic World is because for far too long there has only been negativity about India on the digital medium. Republic World is my campaign against the negativity prevalent on social media and digital media. So for the first time, I offer you a choice. Get the content that builds the nation. Avoid the content and avoid everyone on digital media who speaks against the nation. And do not forget to download the Republic World app for breaking news alerts. Thanks for watching. Together, let's kill the negativity against India on the digital media. Let's ensure that it's truly nation first, no compromise. मैं हूं अयाज और आप देख रहे हैं टेक टॉक। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस खबर के बारे में जिस खबर का इंतजार पबजी वाले पिछले 6 दिनों से कर रहे थे, यानी तब से कर रहे हैं जब से पबजी इंडिया में बैन हुआ है। जी हां, पबजी पर जो इंडिया में बैन लगा है उस पर साउथ कोरियन फर्म पबजी कॉर्पोरेशन ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिसके बाद इंडिया में पबजी के अनबैन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी हां, यू हर्ड इट राइट, पबजी के इंडिया में अनबैन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक टॉक वीडियो और आपको बताता हूं कि पबजी कॉर्पोरेशन ने पबजी बैन पर क्या कहा है और कैसे इसके बाद पबजी पर जो बैन लगा हुआ है उसको रिव्यू भी किया जा सकता है। अगर आप भी पिछले 5-6 दिन से पबजी बैन को लेकर अपसेट थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अब करें तो क्या करें, तो शायद आज आपकी ये टेंशन काफी हद तक दूर हो जाएगी। कैसे दूर होगी, आइए जानते हैं। तो बात यह है कि साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने कहा है कि वो इंडिया में पबजी मोबाइल के लिए चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम से एसोसिएशन खत्म कर रही है। यानी अब इंडिया में पबजी मोबाइल को साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन कंट्रोल करेगी और इस गेम की सारी पब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी पबजी कॉर्पोरेशन की ही होगी। अब तक पबजी मोबाइल का कंट्रोल और पब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स के हाथ में थी, जिसकी वजह से इंडिया में इस गेम पर भी बैन लगा था। पबजी कॉर्पोरेशन का कहना है कि अपने सिटीजन की डेटा सिक्योरिटी को लेकर जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात करके इस मसले का हल निकालना चाहती है ताकि पबजी मोबाइल इंडिया में अवेलेबल हो सके एज पर इंडियन लॉज एंड रेगुलेशंस। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि इट वोंट ऑथराइज द पबजी मोबाइल फ्रेंचाइज टू टेंसेंट गेम्स इन इंडिया। यानी अब चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स इंडिया में पबजी मोबाइल को कंट्रोल नहीं करेगी और इस गेम की जितनी भी पब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पबजी कॉर्पोरेशन पर आएगी।
कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में यह भी साफ किया कि पबजी मोबाइल प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड का मोबाइल वर्जन है जो पबजी कॉर्पोरेशन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो बात यहां पर बहुत साफ है, पबजी बैन को लेकर पबजी कॉर्पोरेशन काफी सीरियस है, उसने काफी सीरियस लिया है जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है पबजी मोबाइल पर, और कंपनी ने अब टेंसेंट गेम्स से इंडियन एसोसिएशन एंड कर दी है। इस एसोसिएशन के खत्म होने से पबजी मोबाइल का जो चाइनीज कनेक्शन है वो भी काफी हद तक खत्म हो जाएगा और गवर्नमेंट ने जो पबजी पर बैन लगाया है उसको रिव्यू भी किया जा सकता है और पबजी मोबाइल पर लगा बैन आगे हट भी सकता है। हालांकि पबजी कॉर्पोरेशन और टेंसेंट गेम्स के बीच की एसोसिएशन जो है वो सिर्फ इंडियन मार्केट तक ही खत्म होगी। पबजी मोबाइल को टेंसेंट गेम्स ने ही डेवलप किया है और इसके डेवलपर टेंसेंट गेम्स ही रहेंगे। साथ ही टेंसेंट का जो पबजी कॉर्पोरेशन की पेरेंट कंपनी ब्लू होल स्टूडियो में 10% स्टेक है वो एज इज रहेगा और इस एसोसिएशन के खत्म होने से टेंसेंट और ब्लू होल स्टूडियो की पार्टनरशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि पबजी कॉर्पोरेशन जब अपनी ये बात लेकर गवर्नमेंट के पास जाए तो शायद गवर्नमेंट पबजी पर लगे बैन को रिव्यू कर सके, पर यहां पर आप ये याद रखिए कि इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और ये 1-2 हफ्ते में नहीं होगा। किसी भी ऐप को बैन करते हुए गवर्नमेंट एक प्रोसेस को फॉलो करती है और फिर बैन किए गए ऐप को जवाब देने के लिए एक टाइम दिया जाता है और अगर गवर्नमेंट रिप्लाई से सेटिस्फाई होती है तो अनबैनिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको फॉलो किया जाता है। तो यहां पर अच्छी बात आपके लिए यह है कि पबजी कॉर्पोरेशन ने खुद को इंडियन मार्केट के लिए चाइनीज कंपनी से अलग कर लिया है। अब जैसे कंपनी गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखेगी उसी हिसाब से गवर्नमेंट आगे डिसीजन लेगी। तो क्या आपको लगता है कि पबजी कॉर्पोरेशन के स्टेप के बाद पबजी बहुत जल्द इंडिया में वापसी करेगा? ये आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए एबीपी लाइव ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर एबीपी अनकट के वीडियो जरूर देखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।